امام الائمہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، چونکہ آپ نے لاکھوں مسائل کا استنباط کیا، جس سے یہ بات تو واضح ہوتی ہے کہ آپ قرآن و سنت کو اچھے طریقے سے جانتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ میں آپ کے بارے میں یہ رائے رکھتا ہوں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ محدث کبیر تھے، عظیم محدث تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو استدلال کیا، جو آپ کا طریقہ کار تھا حدیث مبارک سے، اور جس طریقے سے آپ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک کو مصدر بنایا، بنیادی طور پر تو آپ کے 3 مصدر تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں سب سے پہلے قرآن کریم، اور اگر قرآن کریم سے مجھے کچھ نہ مل سکے تو پھر حدیث مبارک، اور پھر حدیث مبارک سے اگر نہ ہو تو پھر صحابہ کرام کے اقوال کو لیتا ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ بہترین اسلوب ہے کہ آپ نے بنیادی 3 مصدر رکھے تھے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ہر معاملہ صرف اپنی رائے کے ساتھ نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ قرآن، حدیث اور اقوال صحابہ کو سامنے رکھتے تھے، وہی ان کے لیے اصل مصدر اصلی تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اتنے عظیم محدث تھے، اتنے مسائل کا استنباط کیا، تو ظاہر ہے کچھ نہ کچھ اصول تو آپ کے سامنے ہوں گے۔ آپ نے اخذ حدیث کے وقت یا تحمل و ادائے حدیث کے وقت جو آپ نے اسلوب اختیار کیے، جو شرائط رکھی، جو اصول و ضوابط رکھے، وہ کیا تھے؟ وہ اصول میں آپ کے سامنے آج بیان کرنا چاہتا ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو اصول حدیث تھے، ان میں سے پہلا اصول یہ تھا، لا يقبل خبر الواحد المخالف لنص القرآن۔ ایسی خبر واحد قابل قبول نہیں ہوگی جو قرآن کریم کی نص کے خلاف ہوگی۔ اب اس میں آپ رحمہ اللہ جو اس کے پیچھے ایک دلیل سامنے رکھتے ہیں، وہ یہ ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يخالف القرآن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی مخالفت نہیں کرتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی آیات کے مقابلے میں کوئی ایک بھی فرمان ایسا نہیں چھوڑا کہ جو قرآن کریم کی مخالفت کر رہا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی خبر ایسی آ جائے سامنے کہ جس سے قرآن کریم کی نص کی مخالفت ہو رہی ہو، تو وہ خبر واحد قابل قبول نہیں ہوگی۔ یہ ایک بہترین اصول ہے جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امت مسلمہ کے سامنے رکھا ہے۔ اور دوسرا وہ اصول جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک کا، وہ یہ ہے، یشترط للراوی ان یستمر من التحمل الى اداء الحدیث فی الحفظ۔ یہ بڑا زبردست ایک اصول ہے جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تھا۔ وہ کیا کہ کوئی بھی راوی جو کسی حدیث کو حفظ کرتا ہے، پھر اس کے بعد وہ سنتا ہے، کوئی بھی راوی کسی حدیث کو سنتا ہے اور سننے کے بعد اس کو زبانی یاد کرتا ہے، زبانی یاد کرنے کے بعد اس کو آگے پہنچا دیتا ہے، تو اس کا جس طرح اس نے وہ حدیث سنی ہوگی اسی طرح وہ حدیث آگے پہنچائے، اس میں کوئی فرق نہ آئے، تو ایسے راوی کی حدیث قابل قبول ہوگی۔ اب دیکھیں، یہ شرط صحت حدیث کی بہترین شرط ہے، جس طرح کہ صحت حدیث کی 5 شرائط، متصل سندہ بنقل العدل وتام الضبط من غیر شذوذ ولا علہ، کہ اتصال راوی ہوں، عادل راوی ہوں، پھر تام الضبط ہوں، شاذ اور معلول نہ ہو۔ اب اس میں جو تام الضبط کی شرط ہے، تام الضبط کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جس طرح کسی نے وہ حدیث سنی تھی اس کو یاد کر لیا تھا، اور جب آگے پہنچائی تھی اسی ذہن کے ساتھ اسی طرح ہی اس کو یاد کر کے آگے پہنچا دیا تھا، وہ اسی طرح اس کے ذہن میں برقرار رہی تھی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ایسی شخصیت تام الضبط کے مرتبہ پر فائز ہوتی ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قبول حدیث کی جو شرط رکھی ہے وہ تام الضبط رکھی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود یہ فرماتے ہیں، لا ينبغي للرجل ان يحدث الحديث الا ما يحفظه من يوم سمعه الى يوم يحدث به۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ایک شخص کے لیے لازم ہے، ضروری ہے کہ جس طرح وہ اس حدیث کو سنے، جس دن حدیث کو سنا تھا اس دن سے لے کر اس دن تک جب کہ وہ حدیث کو بیان کر رہا ہے، وہ حفظ میں اسی مقام و مرتبہ پر فائز رہے۔ تو یہ بھی ایک بہترین قسم کا اصول ہے جو صحت حدیث کے لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امت مسلمہ کو عطا کیا ہے۔ اس کے علاوہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو امت مسلمہ کے سامنے اصول رکھا ہے وہ کیا ہے؟ خبر الواحد مقدم علی القیاس۔
खबर वाहिद क़ियास पर मुकद्दम होगी। अब देखें, यहाँ पर वाज़ेह तौर पर मालूम होता है कि इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कभी भी राय को और क़ियास को खबर वाहिद पर, हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुकद्दम नहीं फरमाते, बल्कि आप अपने उसूल के मुताबिक हदीस से इस्तिंबात करते हैं। बाद लोग ये समझते हैं ना कि आप राय को तरजीह देते हैं हदीस मुबारक पर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आपने वाज़ेह तौर पर उसूल सामने रखा है कि क़ियास पर खबर वाहिद मुकद्दम होगी। और इस हवाले से इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह वाज़ेह तौर पर ये फरमाते हैं, अजबन लिन्नासी यक़ूलूना अफ्ता बिर्राई मा उफ्तिया इल्ला बिल असर, कि मुझे ताज्जुब है उन लोगों पर जो ये कहते हैं कि राय के मुताबिक फतवा देना है, जबकि खबर वाहिद या हदीस असर मौजूद है। तो इसका मतलब है कि असर के मौजूद होते हुए राय की कोई अहमियत नहीं होगी। हाँ, उस असर और खबर और हदीस को समझाने के लिए राय का इस्तेमाल तो हो सकता है कि इससे मुराद ये है, लेकिन उसके मुकाबला में इसका इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो ये बड़ा ही खूबसूरत एक उसूल इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने सामने रखा है कि जब एक मुकाबले में राय या क़ियास आ जाए खबर वाहिद के मुकाबला में, तो फिर खबर वाहिद को, हदीस मुबारक को, असर को तरजीह होगी, उस क़ियास को तरजीह नहीं होगी। ये कितना ज़बरदस्त उसूल है, और इससे सारे इतराज़ात जो फ़िक़्ह हनफ़ी या फ़िक़्ह पर किए जाते हैं वो दूर हो जाते हैं। क्यों? इसलिए कि इन उसूल को जब तक इंसान नहीं समझता वो कैसे फैसला कर सकता है। तो इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने बेहतरीन उसूल अता किया है। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने इसके अलावा सनद के हवाले से एक उसूल बयान किया है, और वो ये है कि हद्दसना और अखबरना, या हद्दसना के लिए जो अलकिरात का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है उसके मुतल्लिक़ इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि हद्दसना और अखबरना में कोई फ़र्क नहीं, या जब कोई भी तिलमीज़ किरात करता है अपने शेख के सामने तो उसके लिए भी हद्दसना का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा सकता है। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने अपने एक तिलमीज़ से ये फरमाया था, इक़रा अलैया कुल हद्दसनी, मेरे सामने हदीस पढ़ो और फिर जब दूसरों को बताने लगे तो कहना हद्दसनी। तो मुझे इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने बयान की है। तो इसका मतलब है कि किरात यानी तलमीज़ जब पढ़ता है और शेख सुनता है तो उसके लिए वैसे तो अखबराना का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, लेकिन इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि तू इसके लिए भी हद्दसना का लफ्ज़ इस्तेमाल कर। बहुत ज़्यादा ऐसे मुहद्दिसीन किराम है जिस तरह इमाम तहावी रहमहुल्लाह और दीगर मुहद्दिसीन किराम है जो हद्दसना और अखबराना में कोई फ़र्क नहीं करते। तो इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह आप भी हद्दसना और अखबराना में कोई फर्क नहीं करते। बाद अज़ां इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का एक और बड़ा ज़बरदस्त उसूल वो ये है कि आप अहले हवा और अहले बिद्दत से रिवायत भी कबूल नहीं किया करते थे। अब देखें, अहले बिद्दत की जो रिवायत है उसमें थोड़ा सा इख्तिलाफ पाया जाता है। इसका मतलब है कि आपका जो अख़ज़ रिवायत और तहम्मुल रिवायत का जो दायरा कार था वो इंतहाई अहम था, और उसके अंदर आप बिल्कुल भी नरमी नहीं बरता करते थे। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के उसूल बहुत ही अहम और बहुत जबरदस्त थे, क्योंकि आप सिर्फ सनद को नहीं देखते थे, आप मतने हदीस को भी देखते थे। अक्सर तौर पर आप कुतुब में देखें आइमा किराम ने सनद को सामने रखते हुए अपनी हदीस की शराइत को बयान किया। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह सनद और मतन हदीस दोनों चीज़ों को सामने रखकर हदीस को लिया करते थे और फिर उससे इस्तेदलाल किया करते थे। चूँकि इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का वो दौर था, ताबईन का वो दौर था, और उसमें सहाबा इकराम का बिल्कुल करीब का दौर था, तो उसमें वो तवील सनद तो थी नहीं, वो सनद आली थी आपके लिए और सहाबा इकराम तक वो पहुंचती थी। तो इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह उनसे इस्तेदलाल किया करते थे। ये नहीं है कि आज अगर आप ये देखें जी फलां किताब के अंदर ये सनद बयान हुई है तो ये अहनाफ की दलील है और ये सनद मजबूत नहीं है, आप ये नहीं कह सकते, क्योंकि इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के जो इस्तेदलाल थे और उसके अंदर जो रावी थे वो सनद आली थी। और उस सनद का आपको कैसे पता है? क्योंकि इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह खुद उस सनद और शराइत को सामने रखकर उस हदीस से इस्तेदलाल किया करते थे। ये बात बड़ी समझने वाली है, सारे मसले हल हो जाते हैं अगर बंदा इसी बात को सिर्फ समझ ले कि इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की सनद कौन सी थी जो लाखों मसाइल से आपने इस्तिंबात फरमाया है। इसको बंदा समझ ले तो सारे मसले क्लियर हो जाते हैं। ये कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि हनाफ के दलाइल कमजोर है। इसके बाद एक बड़ा ही अहम और बड़ा जबरदस्त उसूल इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो बयान किया है
वो क्या है? तरजीह रिवायत अलफुक़हाई अला रिवायत अलमुहद्दिसीन। एक तरफ मुहद्दिस एक हदीस को रिवायत कर रहा है और दूसरी तरफ फकीह एज ए मुहद्दिस उस हदीस को रिवायत कर रहा है, तो तरजीह उस फकीह की रिवायत को होगी। यकीनन ये देखें ना, अगर अहकामात से मुतल्लक हदीस होती है तो उसमें फकीह जो हदीस को रिवायत कर रहा है उसके अंदर वो सारी सलाहियतें हैं रिवायत हदीस की जो मुहद्दिस के अंदर भी हैं। क्या मतलब वो जो अदालत होती है, तकवा है, दब्त है, वो मुहद्दिस के अंदर भी पाया जाता है और फकीह के अंदर भी पाया जाता है। लेकिन फकीह उस हदीस को फिक्र की हैसियत से आसान तरीके से जानता है। तो इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ये वाज़ेह तौर पर फरमाया है कि जो फुक़हा की रिवायात हैं वो मुहद्दिसीन की रिवायात पर उनको तरजीह हासिल होगी। तो ये उसूल भी इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह की तरफ से आया है। इस तरह बेशुमार ऐसे उसूल और शराइत हैं जो इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह हदीस मुबारक को बयान करते वक्त, सुनते वक्त या आगे पहुंचाते वक्त या इस्तदलाल करते वक्त उसको मरूज़ खातिर रखा करते थे। अब मुझे हैरानगी होती है उन लोगों पर जो कहते हैं कि इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को 17 हदीस याद। ये तो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, मदारस के हमारे छोटे छोटे बच्चे जिनको सैकड़ों हदीस जुबानी याद है। तो ये तो एक मजाक है और कुछ चीजें वैसे ही पता चल जाती हैं कि ये मजाक है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हमारे शोबा हिफ्ज़ हदीस में या जिन मदारस में हमारी किताब खजीना हिफ्ज़ हदीस पढ़ाई जाती है उन मदारस में बच्चों को 100-100, 150-150, 200-200 अहादीस याद है। तो इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह जिन्होंने लाखों मसाइल का इस्तेंबात किया है उनको 17 हदीस याद थी। कोई बंदा ऐसी बात भी करता है कि जिसको कोई तस्लीम भी कर ले। तो इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह उसूल हदीस के अंदर शराइत हदीस को बयान करते वक्त इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह अपना सानी नहीं रखते, इसलिए आप मुहद्दिस कबीर थे। बेहतरीन उसूल आपने बयान की। मैंने तो सिर्फ चंद उसूल आपके सामने रखे हैं जिससे इतना समझ में आ जाता है कि इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के उसूल क्या थे और उसूल के हवाले से आपका मकाम मर्तबा क्या था और हदीस मुबारक के अंदर आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किस मकाम मर्तबा से नवाज रखा था। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आप इमामुल आइम्मा फिल हदीस थे। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हदीस में बड़ा मकाम अता फरमाया था।